Good morning. Welcome to BioWorld. Today in this lecture we'll discuss our next phylum, that is Annelida. Annelida, these animals may be aquatic or terrestrial. When we talk about aquatic, that means they live in water. But they may live in marine water as well as fresh water, that is either in salty water or fresh water. Now, these animals are free living, that means वो अपने आप रहते हैं, और maybe sometimes they are parasite, मतलब कि they depends on other. Symmetry, bilateral symmetry, we know that when we cut from longitudinal axis, then two equal halves are present, right? That is known as a bilateral symmetry. These animals are triploblastic, that means they are having 3 germ layers. That's why triploblastic. They are coelomate. Coelomate, that means coelom is present. As we know that why coelom is formed, so that mesoderm is divided into 2 subparts, and whatever the cavity is formed, that is known as a coelom, right? This is endoderm, this is exoderm. So coelom, remember, it is observed in triploblastic animal, and that is formed due to that subdivision of mesoderm. Organization, here organ level organization is observed. Now all animals are majority metamerically segmented. Metamerically segmented, like that means they are having external segmentation. बाहर से तो segment है, but even internally they are also having segment, right? So they are metamerically segmented. Now their body surface is distinctly marked out into segments or a metamers. जैसे मैंने अभी बोल दिया कि जो बॉडी डिवाइड होती है और बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, यही सेगमेंट को मेटामर भी बोलते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ एनेलिडा, राइट? जैसे पैर में पहनने के जो झांझर आते हैं, उसे ऐसे कैसे वन बाय वन ऐसे पूरी चेन होती है, राइट? ओके, सो नाउ इट डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एन्युलस. एन्युलस मीन्स लिटिल रिंग. जैसे ऐसे बहुत सारी रिंग होती है, ऐसा लगता है लिटिल रिंग. ओके, digestive system, it is complete, which include pharynx, esophagus, stomach, intestine. Okay, as we know that complete digestive system, so which is having anterior mouth and posterior anus. तो जो दो डाइजेस्टिव सिस्टम, दो ओपनिंग होते हैं, उसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं. और यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में फेरिंग्स है, फूड पास के लिए इसोफेगस है, डाइजेशन के लिए स्टमक है, एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है, इंटेस्टाइन. तो ये जो एनिमल्स है, ये एनिमल्स ऐसे ट्यूब जैसे दिखते हैं, और फिर अंदर ट्यूब जैसी डाइजेस्टिव सिस्टम होती है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बोल सकते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब, राइट? ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नर्वस सिस्टम. Nervous system, it includes pair of cerebral ganglia, which is known as the brain. Cerebral, that is brain. Ganglia, it is a group of nerves. And most important thing, remember beta, when we talk about earthworm, cockroach, जब भी हम लोअर में बात करें, तो लोअर में जो नर्वस सिस्टम होती है वो
वेंट्रल साइड पे होती है। बट हायर ऑर्गेनिज्म जैसे हमारी बात करें तो हमारे में जो नर्वस सिस्टम होती है हमारे डोर्सल साइड, हमारे बैक में होती है। ह्यूमन में कहाँ पे होती है? बैक में, राइट। नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों ऑपोजिट है। जैसे यहाँ पे वेंट्रल सिस्टम, वेंट्रल साइड पे नर्वस सिस्टम है, तो यहाँ पे डोर्सल पे हार्ट होंगे। हमारा उससे उल्टा, ह्यूमन बीइंग में आपको पता है कि वेंट्रल साइड पे हार्ट होता है और डोर्सल साइड पे नर्वस सिस्टम होती है। यहाँ पे उससे उल्टा, वेंट्रल पे नर्वस सिस्टम और डोर्सल पे हार्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, सो डबल वेंट्रल नर्व कोड, आप देख सकते हो कि हर एक सेगमेंट में नर्व्स यूनाइट होती है, मतलब कि गैंग्लिया यूनाइट होते हैं, पूरा नर्व कॉर्ड बनाते हैं, थ्रेड जैसा पूरा। एंड एवरी सेगमेंट में क्या होते हैं? गैंग्लिया। आप देख सकते हो each and every segment possess ganglia united by that nerve fibers and form nerve cord। और हर एक गैंग्लिया में से क्या निकलती है? नर्व्स। तो हर एक गैंग्लिया में से नर्व्स निकलती है, जो मतलब कि नर्व्स है वो जो तो सेगमेंट है उसका क्या करते हैं? कंट्रोल करती है, उसका कंट्रोल करते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमेंबर, नर्वस सिस्टम इज located ventral side, okay, and each segment is having lateral nerves। गैंग्लिया में से ऐसे lateral nerves निकलती है। चलो नेक्स्ट अबाउट सेंसेसरी ऑर्गन। सेंसेसरी ऑर्गन इट इंक्लूड टैक्टाइल ऑर्गन। टैक्टाइल मतलब कि जिससे उनको टच का पता चलता है। टेस्ट बर्ड, थोड़ा टेस्ट पता चलता है। स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट जो उसका बैलेंसिंग करता है, जब वो वॉक करते तो गिर नहीं जाते, दैट इज बैलेंसिंग का काम करते हैं। एंड जो लाइट है उसकी जो मूवमेंट पता चलती है, दैट सेल्स आर फोटो रिसेप्टर सेल्स, राइट। सो दीज आर डिफरेंट सेंसेसरी ऑर्गन्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो हियर गैसेस आर एक्सचेंज थ्रू स्किन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है तो उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जब भी स्किन का यूज होता है एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इट मस्ट बी मॉइस्ट, वो गीली होनी चाहिए। बहुत सारी वहाँ पे कैपिलरीज होनी चाहिए, और अपर सरफेस में होनी चाहिए, और एनवायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होनी चाहिए। और इवन समटाइम्स थ्रू स्पेशलाइज गिल्स, जो एक्वेटिक होंगे उनमें गिल्स होगा, और मॉडिफाइड पैरापोडिया, राइट। पैरापोडिया का जो मॉडिफिकेशन है उसके थ्रू भी वो रेस्पिरेशन करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दे आर हैविंग क्लोज टाइप, राइट। दैट इज ब्लड इज मूव, अगर मतलब कि प्रेशर के साथ मूव करता है, राइट। सो ब्लड इट इज रेड कलर्ड विदाउट आरबीसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। एंड हीमोग्लोबिन इज डिजोल्व इन प्लाज्मा। ये भी चीज पूछते हैं कि भाई हीमोग्लोबिन कहाँ पे डिजोल्व होता है? प्लाज्मा में, और आरबीसीज नहीं होते हैं। ओके, नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ सिलिएटेड फनेल शेप नेफ्रीडिया। ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको नेफ्रीडिया बोलते हैं। अब ये जो नेफ्रीडिया है उसका जो ब्रॉड एंड होता है फनेल शेप का, वहां पे ऐसे फॉर्म्स होते हैं, मतलब कि सीलिया होते हैं, जो क्या करता है कि वो एक्सक्रीटरी वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है और फिर एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बॉडी के बाहर उसको रिलीज करता है। सो ईच सेगमेंट इज हैविंग अ पेयर ऑफ नेफ्रीडिया। हर एक सेगमेंट में नेफ्रीडिया होती है। जैसे अपने में किडनी काम करता है, यहाँ पे कौन काम करता है? नेफ्रीडिया, right? Okay. Now this nephridia collect waste and transport them out of the body by way of excretory tube। ये पूरी ट्यूब होती है और बाहर निकलता है थ्रू excretory pore। And this nephridia also helps in osmoregulation। देखो वाटर बैलेंसिंग का काम भी कौन करता है? ये नेफ्रिडिया। जैसे अपने में किडनी काम करती है वैसे यहाँ पे नेफ्रिडिया काम करते हैं। लोकोमोशन, जो मूवमेंट होती है उसके लिए सीते क्या है? तो कुछ नहीं, वो एस शेप के
काइटिन के बने हेयर होते हैं, राइट, सीते अर्थवर्म में देखने मिलता है। और इन नेरिस, जो नेरिस होता है उसमें ऐसे पैरापोडिया होता है दोनों साइड पे, राइट। पैरा मीन्स सो मेनी, पोडिया मीन्स लेग्स। तो पैरापोडिया आर ऑब्जर्व्ड इन नेरिस एंड सीते दे आर ऑब्जर्व्ड इन earthworm, and setae they are S-shaped chitinous hair-like structure. Reproduction. Some organisms are monoecious just like earthworm and leeches. Male and female reproductive system एक ही में है, उसको बोलते हैं monoecious। और नेरिस वो कैसा होता है, डाइसियस, मतलब कि मेल अलग और फीमेल अलग, राइट। और मोनोसियस में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही में होते हैं। बट अर्थवर्म की बात करें तो भले ही एक ही में मेल और फीमेल दोनों है, बट रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दूसरा अर्थवर्म होना जरूरी है। यहाँ पे जो फ्री स्विमिंग लार्वा देखने मिलते हैं, दे आर ट्रोकोफोर लार्वा। बेटा लार्वा याद रखना, इन लार्वा को कौन सा बोलते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा, राइट। एंड रिप्रोडक्शन बोथ सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली, ठीक है। ओके चलो एग्जाम्पल याद रखना, नेरिस, देन फेरिटिमा पोस्थुमा दैट इज अर्थवर्म, then hirudina, most important, hirudinaria, which is known as the blood sucking leech। इसको लीच बोलते हैं बेटा। जब ब्लड प्यूरिफाई करना हो तो विदाउट क्लॉटिंग, आयुर्वेदिक में लीच बहुत यूज होती है, चिपका देते हैं ऐसे, तो वहां से वो क्या करता है, जो इम्प्योर ब्लड है उसको शक कर लेता है। और इवन ये ऐसे शक करता है कि जो ब्लड है वो क्लॉट भी नहीं होता, राइट। सो अकॉर्डिंग टू योर बुक, ये जो एग्जाम्पल है नेरिस, और आप देख रहे हो ये है उसके स्यूडोपोडिया, राइट, ठीक है। एंड ये है डायग्राम हिरुडिनारिया, ओके। तो एग्जाम्पल याद रखना एनेलिडा के, नेरिस, फेरिटिमा पोस्थुमा दैट इज अर्थवर्म एंड हिरुडिनारिया दैट इज लीच, ओके। सो दिस इज अबाउट फाइलम एनेलिडा, ओके। याद रखना ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स, segments observed, right, okay। सेकंड थिंग, ये जो एनिमल्स है उसमें लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होते हैं। अच्छा याद रखना बेटा, लोकोमोशन में और कौन हेल्प करता है, तो सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडिनल मसल। अच्छा सर्कुलर मसल ऐसे होते हैं जिसकी वजह से उसकी विड्थ इंक्रीज होती है, और लॉन्जिट्यूडनल मसल ऐसे होते हैं जिसकी वजह से एनिमल की लेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है। तो सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल मसल ऑल्सो हेल्प्स। अपेंडेजिस आपको बताया है, मैंने बोला अभी पैरापोडिया, और नेरिस में पैरापोडिया होता है तो वो तो उसको स्विमिंग में भी हेल्प करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड, एक्सक्रीशन इज डन बाय नेफ्रीडिया, उसका फंक्शन है ऑस्मोरेगुलेशन, राइट, ओके। और एनिमल में भी डायोशियस और मोनोशियस। नेरिस एक्वेटिक फॉर्म है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ओके। एंड अर्थवर्म मोनोशियस, ओके।